G. The topic for today, this is your teacher Sir Haris. The topic for today is partnership changes, and we are going to learn about admission. And I told you earlier that admission will contain three topics. Number one, it is going to affect the capital, because when the new partner is going to admit into the business, he will bring his capital in the business. The second point is goodwill. We have discussed that goodwill is supposed to be recorded in the books first, and then is going to be written off between the all partners with new ratio. Then there is going to be revaluation of assets. Why the revaluation of assets take place? Because all the partners needs to come to a conclusion. What should be the value of the assets and liabilities? Some assets will increase, some assets will decrease, some liabilities will increase, some liabilities will decrease. Accordingly, we have to increase and decrease the assets through revaluation account. And this revaluation will directly affect old partners, because the profit or loss on revaluation will be distributed among old partners with old ratio, because it has nothing to do with the new partner. अगर कारोबार को फायदा या नुकसान हो रहा है नए पार्टनर के आने पे because of changes in the assets and liabilities, तो उसके जिम्मेदार पुराने पार्टनर्स हैं, क्योंकि उन्हीं की मेहनत या नाअहली की वजह से ये अकर हुआ है, राइट? तो उसको हम जो है वो देखते हैं अभी क्वेश्चन को. ओके, देखिए जी, सबसे पहले क्या है जी कि पहला पॉइंट क्या है जी, नंबर वन, there are two partners, Paul and Angela. They have current liabilities. Their capital accounts are given, but the important thing is the current accounts are not given in the question. Current accounts are not given in the question. So Richard paid 75,000 as capital in the partnership bank account. The first entry which you are going to pass is bank account. Account is going to be debit with how much amount? 40,000 था. ये सवाल आप निकाल लें. 75,000, sorry. And Richard capital account is going to be credited with 75,000. छोड़ देते हैं. उसके बाद गुडविल की एंट्रीज आ जाएंगी आपकी. क्या करेंगे जी, गुडविल डेबिट होगा पहले. अमाउंट है जी गुडविल की 50,000. और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे आपके. उसमें कौन है बंदे, हम देखते हैं कौन कौन है. एक है जी पॉल कैपिटल अकाउंट, एक पॉल और एंजेला. और ओल्ड रेशियो से. ओल्ड रेशियो क्या चीज है उनकी बताइएगा जरा मुझे. Old ratio between the partners is going to be how much? Is it given in the question? No, it's not given in the question. So what we are going to do? What is going to be the old ratio? What ratio we treat as old ratio? Anyone? कैपिटल वाली. No, we will treat as equal. So equally. Yes, we will treat as equal ratio, because in case of absence of partnership agreement, वैसे तो यहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम सपोज यही करेंगे कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, लिहाजा अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं बताई तो इक्वल रेशियो से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कर देंगे. और यही मेथड होता है कि हम दोनों को इक्वल रेशियो से बांट देते हैं. तो देखते हैं हम आगे इसको. जी, इक्वल रेशियो से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम. और उसकी एंट्रीज हमारी क्या होंगी? 50,000 गुडविल थी. ओल्ड रेशियो वी विल ट्रीट एज equal 25,000, and then
एंजेला कैपिटल अकाउंट। बेटा क्या नाम हमजा, आप जो बात कह रहे हो ना, आप बात कह रहे हो सर कैपिटल, वो बेटा कैपिटल लिखा होता था, चेक कर लीजिएगा सवालों में। आप जो पिछले क्वेश्चंस को लेकर आपने ज़हन में बना लिया कि कैपिटल रेशियो है, वो कैपिटल रेशियो लिखा होता था उसने, यानी तब क्वेश्चन उसने बताया होता था कैपिटल रेशियो करनी है तो करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और वो प्रॉफिट को शेयर करते थे कैपिटल रेशियो में। गुडविल कभी भी कैपिटल रेशियो में शेयर नहीं होती, याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा आता नहीं है। ठीक है सर। अब गुडविल को राइट ऑफ करना है हमने, तो हम करेंगे जी पॉल कैपिटल अकाउंट, डेबिट हो जाएगा। एंजेला कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। बंदा कौन है जी? रिचर्ड, वो भी क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट हमारा क्या हो जाएगी जी? गुडविल क्रेडिट हो जाएगी हमारी। Goodwill is going to be credited with the amount, with the total amount, which is 50,000. अब ये किससे होती है? न्यू रेशियो से। न्यू रेशियो क्या है जरा बताएंगे मुझे आप, क्या है जी? 5:3:2। 5:3:2 का बनता है 5/10, 3/10 और 2/10। तो 5/10 जो है वो बन जाएगा 25,000, 2/10 बन जाएगा जी, सॉरी 3/10 बन जाएगा आपका 30,000, 15,000। नहीं सॉरी नहीं सर, 15,000 15,000। जी जी। और 1/10 जो है वो आपका बन जाएगा 10,000। हो गया जी, 5,000। 5,000 बनता है, नहीं 10,000 बनता है। नहीं नहीं, 2, हाँ ठीक, 10,000 ठीक है। 2 और 5, 2 और 10। ठीक है जी, ये हमने गुडविल की एंट्री से पास कर ली। अब आती है एंट्रीज किसकी जो नई, वो रिवैल्यूएशन की है, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए जी रिवैल्यूएशन क्या हो रही है नंबर 3 पॉइंट में, नॉन करंट एसेट्स वर रीवैल्यूड एट 2,70,000। देखिए ऊपर नॉन करंट एसेट्स कितने दिए हैं ऊपर, नॉन करंट एसेट्स गिवन इन द क्वेश्चन इज 2,25,000। 225। एसेट्स हैज बीन इंक्रीज्ड, नॉन करंट एसेट्स हमारे क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं, इंक्रीज कर गए हैं। कितने से इंक्रीज कर गए हैं? पहले वो कितने थे? 2,25,000 के, आप कितने हो गए? 70,000। कितने से इंक्रीज किए हैं, कोई बता सकता है? 45,000। 5,000 से। तो उसकी एंट्री नॉन करंट एसेट्स जो हमारे इंक्रीज कर रहे हैं, गोइंग टू बी डेबिटेड, नॉन करंट एसेट्स आर गोइंग टू बी डेबिटेड with 45,000 and the valuation account is going to be credited as I discussed with you, because we are getting the benefit, so there is going to be an income, so income is going to be credited, that's why revaluation account is going to be credited, क्योंकि बेनिफिट हो रहा है आपको। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। करंट एसेट्स इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाज रीवैल्यूड एट 40,500। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट छोड़ देते हैं हम, अदर करंट एसेट्स की बात करते हैं, वो कितने के हैं? 61,500 के। और अब कितने हो गए हैं? 40,500 के हो गए हैं। तो क्या हुए? इंक्रीज हुए, डिक्रीज हुए? वैल्यूड एट 4,500। जी, इंक्रीज हुए, डिक्रीज हुए? डिक्रीज हो गए। डिक्रीज हो गए, कितने से? 20,000 से डिक्रीज हो गए। हम उसकी एंट्री पास करेंगे जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज यू हैव टू सस्टेन अ लॉस 1,000 से, और क्रेडिट आपका क्या हो जाएगा जी? करंट एसेट्स। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं जी हम। अच्छा, ये इसमें नॉन करंट एसेट इकट्ठे दिए हुए हैं, आपको क्वेश्चन में नॉर्मली नाम दिए होंगे। बिल्डिंग हैज बीन रिवैल्यूड बाय 2,000, इन्वेंटरी इज डिक्रीज्ड बाय 3,000, राइट? फर्नीचर हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 4,000, ट्रेड पेबल्स हैव इंक्रीज्ड, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज्ड बाय 2,000, इस तरह से दिया होगा। लेकिन यहाँ पे उसने टोटल दिया हुआ करंट एसेट, तो हम उससे हिसाब से भी कर लेंगे, बात एक ही है। करंट लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड एट 45,950। से पहले कितनी थी करंट लायबिलिटीज? 53,950 की थी, अब कितने की हो गई है जी? अब हो गई है वो 45,950 की। तो डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई है?
करंट लाइबिलिटीज आपकी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। उसके अब एंट्री क्या पास करेंगे, करंट लाइबिलिटीज जो है वो डेबिट हो जाएंगी कितने से, 8000 से, और क्रेडिट हो जाएंगी आपकी, क्रेडिट हो जाएगा आपका क्या, रिवैल्यूएशन जैसे जी अकाउंट में लिख नहीं रहा तो चलिए ऐसे ही कर ले 8000 से। दिस इज हाउ वी हैव पास्ड ऑल द एंट्रीज रिगार्डिंग द रिवैल्यूएशन। क्योंकि करंट लायबिलिटीज जब डिक्रीज होती है ना तो वो डेबिट होती है, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी, हमें फायदा होगा। दैट्स व्हाई रिवैल्यूएशन अकाउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड, वी हैव गेन्ड, क्योंकि लायबिलिटीज एडमिशन की वजह से क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। अब हम का नाम लेके बनाते हैं इसके अंदर क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम इसमें बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, इधर लिखेंगे जी हम इधर आपका डॉलर का साइन आ जाएगा। देखिए जो जो एंट्रीज रिवैल्यूएशन की है उसको पोस्ट करते जाए। पहली एंट्री की है नॉन करंट एसेट टू रिवैल्यूएशन, जैसे अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, नॉन करंट एसेट्स की वजह से। कितने जी, 45,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है कितने से, 21,000 से, किसकी वजह से, करंट एसेट्स की वजह से। कितने से हो रहा है जी, 21,000 से। ओके हो गया जी। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, करंट लायबिलिटीज की वजह से। थोड़ा छोटा बना लेते हैं, कितने से जी, 8,000 से। दैट्स इट, टोटल कर देंगे, द क्रेडिट साइड इज टोटल देन द हैवियर साइड। तो कैसे इस तरह से इसको टोटल कर देंगे हम, इसका भी आ जाएगा टोटल। टोटल आपका आता है जी 53,000 इज द टोटल। इधर भी आ जाएगा 53,000। और बैलेंस कैरेक्टर आपने लिखना नहीं है लेकिन निकालना जरूर है। तो बैलेंस हमारा कितना आता है, अगर माइनस करें 53,000 माइनस 21,000, तो आपका आता है 32,000। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा जी, अब ये बैलेंस तो आ गया लेकिन इसको कैरी डाउन से क्लोज नहीं करना आपने, इनकम स्टेटमेंट से क्लोज नहीं करना। दिस प्रॉफिट, इट्स ए प्रॉफिट यार, because credit side is heavier than debit side, you are going to have a profit. This profit is going to be distributed between the old partners with old ratio. किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, पॉल में और एंजेला में। कितने की अमाउंट आ जाएगी, उनकी रेशियो क्या है, हमने उसकी रेशियो बताई थी, इक्वल है। तो इक्वल रेशियो के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि रेशियो दी नहीं हुई थी, दी होती तो हम उसके हिसाब से कर देते। ये आपका आ जाएगा जी 16,000 and 16,000। And this is how we are going to record this in the revaluation account. Profit will be distributed among all partners with old ratio. Okay, ये हम रिकॉर्ड कर देंगे और इसकी एंट्री पास होगी। फिर वो क्या होगी जी, देखिए अकाउंट बनाने के बाद एंट्री हो रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि पहले वो क्रेडिट था, उसका प्रॉफिट हमने किस में डाल दिया, दोनों बंदों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कैपिटल अकाउंट में चला गया कितना, 16,000, चला गया किसमें, एंजेला कैपिटल अकाउंट में चला गया कितना जी, 16,000। और डेबिट हो जाएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट की अमाउंट से, वो कितनी है जी, 32,000।
ये हमने एंट्री पास कर दी। इस एंट्री को पोस्ट करो तो अब देखो एंट्री वही बनेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, पॉल कैपिटल अकाउंट की वजह से और एंजेला कैपिटल अकाउंट की वजह से। एंट्री नेट इफेक्ट उसका वही बन रहा है जो कि हमें चाहिए था। समझे इस बात की। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज गोइंग टू बी, रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है। ये हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए। इट मींस अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी होगी तो आपको लॉस होगा। यहाँ पे आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 32,000 का। दैट प्रॉफिट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स विद ओल्ड रेशियो, बिकॉज ये उनकी मेहनत से हुआ है। लॉस होता तब भी उन्हीं को जाता क्योंकि उनकी कारकर्दगी ये सारी है, इसका नए पार्टनर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमने अकाउंट बनाने के बाद एंट्री की इसकी। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट है, प्रॉफिट जब ट्रांसफर होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ट्रांसफर किसमें हो रहा है, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो पॉल कैपिटल अकाउंट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 16,000, एंजेला कैपिटल अकाउंट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 16, इसलिए तो क्रेडिट हो रहे हैं क्योंकि वो बढ़ गए। ओके, ये हमने एंट्रीज पास कर दी। अब हमने क्या बनाने हैं जी, अब हमने बनाने हैं उनके कैपिटल अकाउंट्स, तो वो हम बना के दिखाते हैं। हम एक स्क्रीनशॉट और खोलते हैं rather than can to prepare it, because this is the one of the questions which I want you to solve on my own. ये किधर गया, तो हम लिखेंगे जी इधर कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स, क्योंकि हम एक का नहीं बना रहे, इकट्ठा बना रहे हैं सबका। एक बच्चे ने सवाल किया, सर पहले तो हम करंट अकाउंट बनाते थे, कैपिटल अकाउंट्स कहाँ से आ गए। यार एडमिशन, रिटायरमेंट और प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट, ये टॉपिक हमारे तो नहीं आ गए। हम एडमिशन इफेक्ट करता है कैपिटल पर, गुडविल पर, और रिवैल्यूएशन इफेक्ट होता है। ये सब चीजें कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू रिजॉल्व की जाती हैं। इट इज गोइंग टू बी डेल्ट थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। व्हाई, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट रिजल्टेड फ्रॉम द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ये कारोबार को चलाने से प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा, एडमिशन की वजह से हो रहा है। तो इसका करंट अकाउंट पर इफेक्ट नहीं जाएगा, बल्कि डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट पर इफेक्ट जाएगा। तो हम अकाउंट किसका बना लेते हैं जी, एक तो हमारा बनेगा जी एंजेला का, ये गलत हो गया काम, सॉरी यार, ये प्रॉब्लम आ रही है। सही लग रही थी, अब तंग कर रही है, इसका जो है ना वो कर्सर तंग कर रहा है। ये एंजेला का कैपिटल, सॉरी पॉल का, ये बन गया जी एंजेला का, ये बन गया जी रिचर्ड का। इसी तरह जो दूसरी साइड हमारी बनेगी, ये एंजेला का, ये पॉल का, सॉरी उसका, और ये उसका रिचर्ड का। तीन तीन अकाउंट मैंने बना लिए। ऊपर से इसको हम ऐसे क्लोज कर देते हैं, आपको पता ही ये तरीका होता है, और नीचे से भी हम क्लोज कर देते हैं, और नीचे तो डबल लाइन आती है। आपको इस बारे में भी अच्छी तरह इंफॉर्मेशन है। दीज आर द कैपिटल अकाउंट्स, इसके नाम हम लिख लेते हैं। पॉल का, एंजेला, एंड तीसरा क्या है, मैक्स है, मैक्स है मेरा ख्याल है। फिर इधर भी एंजेला, पॉल, रिचर्ड है, सॉरी वही ना, रेचल है आखिरी, मैक्स। रिचर्ड का तरह अकाउंट थोड़ा सा हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जी, तो रिचर्ड का अकाउंट जो है थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, और इसकी हम डबल लाइन लगाते हैं। आपको पता है ये बाइफरकेट कर रहा है ना दोनों अकाउंट्स को।
हम इसमें डबल लाइन जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके, अब हम इसको लिख लें। रिचर्ड आ गया जी। इस तरह यहाँ पे पॉल, एंजेला और रिचर्ड, इसको जैसे अकाउंट बनाते हैं उस तरीके से इसको हम डील करेंगे जो हमारा प्रॉपर वे है। क्यों जो है ना वो उसमें ना छोड़ है लाइंस को, लेकिन कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। तीनों कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आएंगे सबसे पहले, सारी बात है, क्योंकि बैलेंस तो आपने लेने हैं, बैलेंस तो आने ही आने हैं इनके, ठीक है ना, बैलेंस तो आपको लेने ही लेने हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा जी इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखते हैं किसके कितने दिए हुए। तो अगर आप देखें कैपिटल पॉल का है जी 1,45,000, दूसरे का 95,000। पॉल का हम लिख लेते हैं जी 1,45,000 और दूसरे का है जी 95,000। वो तो एडमिशन नया, वो नया कैपिटल लेके आ रहा है, तो वो चेक की सूरत में लेके आ रहा है, तो उसका तो आपको पता है एंट्रीज क्या होगी। बैंक टू रिचर्ड कैपिटल अकाउंट था, तो बैंक की वजह से रिचर्ड कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, और उसकी अमाउंट कितनी है 75,000 जो क्वेश्चन में दी हुई है। उसकी बारी किसकी आती है, गुडविल की एंट्रीज की। एंट्रीज आपके पास है, आप वहां से देख सकते हैं, ये देखें मैं उन एंट्री से ही पास कर रहा हूँ, ये एंट्रीज मैंने की। रिचर्ड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 75,000 बिकॉज ऑफ बैंक, फिर पॉल कैपिटल अकाउंट, एंजेला कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे 25,000 से बिकॉज ऑफ गुडविल, और फिर डेबिट होंगे 25, 15 और 10 से बिकॉज ऑफ गुडविल अकाउंट। तो वो हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले जी गुडविल आ जाएगी इधर क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट हो रहे हैं जी, इसकी वजह से जी 25,000, और वो भी हो रहा है जी कितने से जी 5,000 से। उसके बाद डेबिट हो रहे हैं जी इधर गुडविल, पहले 25,000, फिर 15,000, लास्ट में आपका आ जाएगा जी 10,000। ठीक हो गया जी, गुडविल की एंट्रीज भी कर ली। अब आती है एंट्रीज किसकी, रिवैल्यूएशन की। देखते हैं रिवैल्यूएशन को हम, रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हमने ऑलरेडी पास की है, देखते हैं कैसे रिवैल्यूएशन की एंट्रीज को एडजस्ट करते हैं। आपको सारी एंट्री एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो आपने सिर्फ कैपिटल अकाउंट की एंट्री को एडजस्ट करना है कि जो प्रॉफिट उनका हुआ है, प्रॉफिट हुआ था ना, वो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। वैसे भी एंट्री में देख लें पॉल कैपिटल अकाउंट और जेला कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन, तो हम क्या करेंगे कि क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन को, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपका पॉल और एंजेला का, यहाँ पे आ जाएगा 16,000 और यहाँ पे आ जाएगा 16,000, और नाम किसका आएगा, रिवैल्यूएशन का। ये एंट्री थी रिवैल्यूएशन की, जो मैंने जिस बनाने के लिए मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको एडजस्ट करने के लिए मैंने ये सॉल्व करके आपको दिखाया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप कैसे डेवलप करेंगे। दैट्स इट, नाउ यू विल गो फॉर द टोटल्स। टोटल करें ये कितना आता है, क्योंकि हमने अब कैरेडिट बैलेंस निकालना है ना, बताएं मुझे टोटल कितना आता है जी। 1,45,000 plus 25,000 plus 26,000, what is the total? 186,000. 196,000। 86. चलिए जी, इधर आ जाएगा जी 186,000, इधर भी आ जाएगा 186,000, माइनस कर दें 25,000 उसमें से, तो यू विल गेट योर क्रेडिट डाउन 161.
161,000। ठीक है जी। अब इसका बना लेते हैं। इसका तो मुझे पता है कितना आएगा, इसलिए मैं लिख लेता हूँ। आ जाएगा 65,000 कैरीड डाउन, और इसका आपने निकालना है टोटल। टोटल कितना आता है जी? सबसे पहले टोटल देखते हैं। 136,000 136,000 माइनस कर देंगे 15,000, 121,000 याद कर देंगे 121,000। इसका कैरी डाउन आ गया, और टोटल इसका 136,000 है। स्टार्ट करें जाएंगे 136,000, और इसका आ जाएगा अगले वाले का टोटल 75। तो ये हमने कैपिटल अकाउंट्स अपने कंप्लीट कर लिए। डेफिनेटली आपको पता है यू हैव टू राइट द ब्रॉड डाउन बैलेंसेस of these all capitals. This is the way we used to solve the question. 121,000 and then 65,000. These are the new balances. अब अगर आगे ये कहता है कि मैंने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाई, सपोज करो कहते हैं, तो याद रखिएगा मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन नए बैलेंसेस पे कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 161,000 पे कैलकुलेट होगा, 121,000 पे कैलकुलेट होगा, 65,000 पे कैलकुलेट होगा, नॉट ऑन 145,95। नो, ओके। इसमें कोई मसला है तो मुझे बिला झिझक आप पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारी एंट्रीज कराई हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाया है। तो उसमें प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा, तो वो दोनों पार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो से। ठीक है जी। और उस सूरत में एंट्री रिवर्स होगी ना, यस सर। एंजल कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, लॉस होता था। और फिर मैंने आपको बनाना सिखाया कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाएंगे एडमिशन के अंदर जब पार्टनर का एडमिशन हो रहा होता है। तो ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। डिवीजन बिटवीन पार्टनर्स भी मैंने की है, और प्रॉपर्ली इसको मैंने सॉल्व किया है आपके सामने। अब अगला सवाल जो है वो आपके सामने दिया हुआ है, याद रखिएगा। करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए, यू विल टेक द क्लोजिंग बैलेंस, फॉरगेट अबाउट शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स, यू विल स्टार्ट फ्रॉम द क्लोजिंग बैलेंस द करंट अकाउंट बैलेंसेस। और उसने कहा था फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये एग्रीमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है आपको। नॉन कैंसिल द रिवैल्यू इन्वेंटरी वैल्यू उस पे रिड्यूस हो रही, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट्स। और आगे उसने कोई ऐसा बात हमें नहीं बताई, जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ रहा है, कोई नई चीज में मौजूद नहीं है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको सॉल्व करना है, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट ऑब्वियसली। और जो अगला क्वेश्चन है वो भी आपने सॉल्व करना है, वो भी आपने क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है। तो ये आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन मैंने पहले, 2 क्वेश्चन शायद पहले दिए, और 2 ही क्वेश्चन मैंने आपको अब दिए, यानी 4 क्वेश्चन दिए असल में आपको। तो ये आप संडे तक कंप्लीट करें। नो नीड टू गो इनटू दैट। आप संडे को भी शामिल करके कंप्लीट कर दीजिए। आज सैटरडे है ना, ओके। तो संडे तक कंप्लीट करने, कल मैं आपसे टॉपिक को और डिस्कस करूंगा, और फिर मैं आपको वीकेंड पे होमवर्क जो है वो दे दूंगा। कल हम रिटायरमेंट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एनीथिंग यू कैन आस्क मी। जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं उसके ऊपर तो पिछली बार तो आसान थे। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें करंट अकाउंट को तो यूज ही नहीं करना ना आपने, क्योंकि जो कह रहा है प्रॉफिट लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, तो इक्वली शेयर हो रहा है, नो इशू। ठीक है जी। ओल्ड रेशियो नहीं इक्वल है। इंटरेस्ट टू बी चार्ज 5% ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट टू बी अलाउड 10% ऑन कैपिटल्स। उसका क्वेश्चन से ताल्लुक ही नहीं है। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन डजंट रिक्वायर यू टू प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट? क्वेश्चन डजंट रिक्वायर यू टू प्रिपेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंडली, अगर आप गौर करें, दे हैड नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इक्वल। ओल्ड रेशियो भी इक्वल है, नई न्यू रेशियो भी इक्वली कैलकुलेट की जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो अगला सवाल है उसमें वो सोल ट्रेडर है, पहले करेक्शन करनी है आपने। पहले क्वेश्चन में करेक्शन होगी प्रॉफिट की, कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे, और फिर आगे सवाल व्हाई द गुडविल हैज अराइजन, गुडविल अकाउंट आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, और फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसका बनाएंगे। फिर हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होगा। करंट अकाउंट है, वैसे ये क्वेश्चन भी खुद करने वाला नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम बाद में देख लेंगे। पिछले क्वेश्चन को जरा एक नजर मार लूं ताकि मुझे ज़्यादा हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको उसमें नहीं आएगी। जी ठीक है जी, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है।
ठीक है जी, तो ये आप कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे रिटायरमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रिटायरमेंट इससे अगले पार्ट में, पीछे रिटायरमेंट पहले वैसे नॉर्मली मैं करवाता होता हूँ, लेकिन मैंने पहले एडमिशन करवाया है क्योंकि मुझे लगा एडमिशन ज़्यादा आसान है, तो वी शुड गो फॉर द एडमिशन फर्स्ट, और वो कैलकुलेट करके फिर हम आगे की तरफ जो है वो मूव ऑन अपना जो है वो करेंगे, और उसके तरीके से हम फिर इसको जो है वो सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चंस को। ठीक है जी, कोई मसला है तो पूछ लें मुझसे, समझ आ गई है? जी सर ठीक है। ठीक है जी, ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।